Students, today I am going to discuss about one-dimensional wave equation. One-dimensional wave equation, as the name suggested, one-dimensional wave equation. Here, one-dimensional wave equation is given. The one-dimensional wave equation be given as del 2y upon del t square is equal to c square del 2y upon del x square. This is the one-dimensional wave equation. Del 2y upon del t square is equal to c square del 2y upon del x square. This is the one-dimensional wave equation. It is generated whenever a string of length L, which is attached in between 2 points L apart, which is L apart, means हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वेव का जनरेशन आपने पढ़ा होगा. कंसीडर ए रोप ए स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड इन बिटवीन 2 पॉइंट A and B. Okay students, so now let us take A, B first point and B be the second point. A string having the length L is attached here. Okay, so whenever a string L is attached here, so in this case, if condition is that it is string is perfectly flexible, string is stretched tightly. Okay, so now if this condition adopted here, उस केस में जब कभी भी आप थोड़ा सा स्ट्रिंग को खींच के छोड़ेंगे तो स्ट्रिंग ऐसे वन डायमेंशनल वाइब्रेशन करेगी, वाइब्रेट करेगी. जब वाइब्रेट करेगी तो वह इस तरह का वाइब्रेशन होगा, इस तरह का वाइब्रेशन होगा, वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी ऐसे. सो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा. A एंड B, हमने स्ट्रिंग को खींच के छोड़ा, यहां खींच के छोड़ा, अब स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है. यहां दो इनिशियल कंडीशन होंगे इस दिए गए प्रॉब्लम में. y इज हियर डिस्प्लेसमेंट, y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज y, this is x, this is x axis, this is y axis. So y is displacement. As you know, initially here whenever x is equal to 0, y is equal to 0, and here x is equal to L, then y is again 0. These two conditions is said to be the boundary condition. ये दोनों कंडीशन चूंकि स्ट्रिंग के बाउंड्री पे हैं, ऐसा दिख रहा है. यक्स क्या है? यक्स ये एक डिस्टेंस है, यू कह लीजिए. डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स और टी पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है और डिस्टेंस पे डिपेंड है. तो यहाँ एक्स जब जीरो होगा, एक्स जब जीरो होगा, दिस इज द पॉइंट वेयर एक्स इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट वाई भी जीरो होगा. जब x की वैल्यू L होगी, मीन्स स्ट्रिंग की लंबाई जब L होगी, मीन्स दिस पॉइंट इज L, सो y इज अगेन जीरो. इन दोनों पॉइंट पे जो y होगा वो जीरो होगा. इसे हमने कहा बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं. सो नाउ द बाउंड्री कंडीशन भी हियर
बाउंड्री कंडीशन भी x equal to 0, y equal to 0 and for x is equal to 0, y equal to 0 and for x equal to L, y equal to 0. So by using this condition, we can solve this expression which is given here, which is known as one dimensional wave equation. हम इसका solution आपको बताने जा रहे हैं. So now write down solution of one dimensional wave equation. We can write again here solution of one dimensional wave equation. So how to solve this one dimensional wave equation? By using variable separation of variables. So let us see, the one dimensional wave equation is given here and its boundary condition is also be given here. So how to solve? Keep the patience. Solution will be like this. Question होगा solve या find the solution of one dimensional wave equation with the given boundary condition with this. अब हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, इसे सॉल्व कीजिए इस बाउंड्री कंडीशन को. सॉल्व करने के लिए प्रोसेस बताया जा चुका है. फर्स्ट राइट डाउन गिवन दैट del t square del 2y upon del t square is equal to c square del 2y upon del x square. This is equation first. Don't write here first. This is first. So as you know, y z depend on x and t. So as you know, in previous way, we can consider the solution of y in term of x and t. So now let the solution be y equal to, y is a function of x and t, so write down y x t equal to x x t t. This is equation number 2. Here x is a function of, here capital X is a function of small x and capital T is a function of small t. Here capital X is a function of small x and capital T is a function of small t. So आपको बताया जा चुका है कि आप अब करेंगे क्या, इस इक्वेशन 2 के हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट में इन्वॉल्व होने वाले सारे डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 2, so from equation 2 we have del y by del t is equal to x del t by del t
So we can write as in previous, this is dt by dt. Why? Because of, as you know, capital T is a function of small t. Since t dependent is depend on only one independent, so partial derivative can be converted into ordinary differentiation. As the same process, since we हमें जो रिक्वायर्ड है वो सेकेंड डेरिवेटिव की है, इसलिए अभी इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे. दिस इम्प्लाइज दैट सेकेंड डेरिवेटिव भी as it is x d2t upon dt square. This is with the third and fourth v. Similarly, del y by del x is here t, del x by del x. So it can be t dx by dx. And again, del 2y upon del x2 equal to t d2x by dx square. This is the fourth. This is fourth equation. Okay, students. So now, from third and fourth, equation 1 becomes, आप सभी को बताया जा चुका है, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं. So from third and fourth, equation first becomes, क्या हो जाएगा थर्ड और फोर्थ से? शो दिस इक्वल टू t d2y d2x upon dx square, which is equal to c square, and the value of this will be x d2t upon dt square. फ्रॉम फर्स्ट देखें आप, इसकी वैल्यू को हमने यहां से पुटअप कर दिया, इसकी वैल्यू को यहां से पुटअप कर दिया. सो नाउ आई थिंक टी स्क्वायर भी, सॉरी थोड़ा सा गलत ये हो सकेगा, हो जाएगा del 2y upon del, this is this equal to x d2t upon dt square is equal to c square, and this x square be here, so t d2x upon dx square. अब सही है ये. सो फ्रॉम हियर, इसके बाद की प्रक्रिया बताई जा चुकी है आपको. आप क्या करोगे, यहां से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, t के फंक्शन को t साइड में, x के फंक्शन को x साइड में ट्रांसपोज करेंगे. तो यहां से क्या मिलेगा, 1 अपॉन c स्क्वायर t d2t अपॉन dt square is equal to 1 upon x d2x upon dx square. This is equation number 5th. This is 5th. From here, again we can say that LHS is a function of t, RHS is a function of x. There are two variable x and t. It cannot be equal. ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते जब तक कि दोनों ही अलग अलग किसी कांस्टेंट के इक्वल न हो. यहां हम लिखेंगे इसको, हियर LHS is a function of t and RHS is a function of x. It is only possible, whenever both equal to
the same constant. Both equal to the same constant. अब let it be constant be k. Let it be k. So from here, if this constant be k, then after equation 5 becomes 1 upon c square t d2t upon dt square is equal to 1 upon x d2x upon dx square is equal to k is equal to k. हमने ऐसा सपोज कर लिया कि एल एच एस टी का फंक्शन है, आर एच एस एक्स का फंक्शन है, और यह तभी संभव है जब दोनों ही किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल हो. सो फ्रॉम हियर that is we can write c square t d2t upon dt square is equal to k and 1 upon x d2x upon dx square is equal to k. ऐसा लिख सकते हैं. So either this equal to this and this equal to this, ऐसा लिख सकते हैं. ये तभी इक्वल भी होंगे according to this. So now from here it can be d2t upon dt square is equal to kc square t. From here kc square t. Now this can be written as d2t upon dt square minus k c square t equal to 0. So this way d square minus k c square t equal to 0. This is the second order differential equation, second order ordinary differential equation. From here you can see this equation is a second order differential equation having the constant coefficient. So now here auxiliary equation be m square minus k c square equal to 0. So m equal to plus minus root over c root over k. हम ऐसा लिख सकते हैं c root over k plus minus c root over k. From here again like this, whenever we will solve dx square minus kx equal to 0, यहाँ से आप देखें इसे लिख सकते हैं d square minus k x equal to 0. So auxiliary equation भी auxiliary equation भी m square minus k equal to 0, m square minus k equal to 0. So m equal to again plus minus root k. Here both root are real and distinct. So now CFB, here CFB, C1 e to the power c root k t because of independent is t plus c2 e to the power c minus c root k t. This is the CF. This is the CF.
this is the CF, and from here CFB C3, because of C1 and C3 C2 we have used here C3 e to the power root k, the independent is here x, plus C4 e to the power root k minus root kx. This is the CF. There are two CF, this and this. So now the complete solution B. Now the complete solution B. This is the value of T. Here CF it means that capital T. This CF it means that capital X. So X, the value of X and T has been evaluated. इन दोनों की वैल्यू निकाली जा चुकी है. अब क्या करना है आपको बताया जा चुका है. इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. सो नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन कैन बी obtained from equation 2, that is yxt is equal to लिख लें C1 e to the power C root kt plus C2 e to the power minus root C root kt plus C3 e to the power root kx plus C4 e to the power minus root kx. Sorry, not this is plus, this is into, because of we have supposed that y is a expressed in product of x and t, so this is the value of t and this is the value of x. It's okay students. So now this will be the complete solution. This will be 6th equation. यहां से अब आप ये कह सकते हैं अभी तक आपने ये निकाला ये इक्वेशन नंबर 6 है, लेकिन यह प्रॉब्लम के नेचर को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वह प्रॉब्लम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का है, तो सॉल्यूशन भी वेव फॉर्म में होना चाहिए. एक समस्या ये आ रही है सॉल्यूशन लिखने के दौरान कि जो सॉल्यूशन आपने निकाला वह कहीं ना कहीं वेव फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि है नहीं. तो क्या करेंगे अब, जो आपने एजम्पशंस के का लिया था उस एजम्पशंस को हम फिर रिपीट करेंगे. के हमने एक कांस्टेंट लिया है और कांस्टेंट 3 तरह से हो सकते हैं. कांस्टेंट 0 हो सकता है, के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है. तो अब हम 3 केसेस एराइज करेंगे. क्यों एराइज होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का था, और वेव इक्वेशन जब भी वेव होगी तो वाइब्रेशन में होगी, तो कहीं ना कहीं वह पीरियोडिक नेचर को शो करेगा, और पीरियोडिक नेचर को तब शो करेगा जब उसका सॉल्यूशन पीरियोडिक हो. आपको देख रहा है सॉल्यूशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किए गए हैं, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक नेचर के नहीं होते. इसलिए अब हम जो इक्वेशन ये मेरे ख्याल से ये 5th होगा, और ये 6 होगा, नहीं ये 6 होगा और ये 7th होगा. ये जो 6th इक्वेशन है, अब हम यहाँ से इक्वेशन 6 में के की वैल्यू के लिए हम केस चूज करेंगे, जो देखते हैं क्या होता है फिर आगे. सो नाउ equation 6 does not able to express the nature of the problem. हम लिख सकते हैं इक्वेशन 7
Equation 7 means solution does not explain the nature of the problem. So we assume the case for k equal to 0, greater than 0, k equal to 0, k is greater than 0, k is less than 0. अब हम तीन केस अज्यूम करेंगे, तीनों पे अलग अलग सोल्यूशन निकालेंगे, देखते हैं. So now if k equal to 0, case first, let us take case first. If k is greater than 0, if k be the positive मतलब that is if k is equal to p square, consider the k equal to p because of p की प्रत्येक वैल्यू के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने p स्क्वायर चूज कर लिया. k की वैल्यू क्या चूज किया? p स्क्वायर. अब p स्क्वायर हो जाने से क्या फायदा होगा? ये p स्क्वायर हो जाएगा, k की वैल्यू p स्क्वायर. यहाँ क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा. सो नाउ यहाँ क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा? m इक्वल टू प्लस माइनस cp. ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस cp. तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये cpt माइनस cpt, माइनस cpt, ये हो जाएगा माइनस cpt. जब आपने k की वैल्यू प्लस p स्क्वायर चूज कर लिया तो जो रिजल्ट आया t का वो आया c1 e टू दी पावर cpt प्लस c2 e टू दी पावर माइनस cpt. ठीक वैसे ही जब आपने यहाँ p स्क्वायर चूज कर लिया तो ये p स्क्वायर होगा और ये p स्क्वायर होगा. So now this be also be p square. So now this becomes plus minus p. So this becomes px and this is minus px. इस केस में जो सोल्यूशन होगा, अगेन the solution be yxt इक्वल टू, इस केस में जो सोल्यूशन होगा yxt वो ये होगा, आप देख सकते हैं c1 e टू दी पावर cpt प्लस c2 e टू दी पावर माइनस cpt इन वन ब्रैकेट इंटू क्या c3 e टू दी पावर px प्लस c4 e टू दी पावर माइनस px. ये आप लिख सकते हैं, लेकिन पुनः आप ये देख रहे हैं कि पुनः एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो प्रॉब्लम के नेचर को सो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. सो नाउ लेट अस टेक द केस 2 आल्सो. केस 2b, केस सेकेंड, whenever k becomes less than 0. so now let us take kb minus p square. अब हमने k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ले लिया. k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लेने से क्या फायदा होगा? ये जो रिजल्ट है वो माइनस हो जाएगा, ये जो रिजल्ट है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? ICPT प्लस माइनस ICPT हो जाएगा. फिर इसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा. जब यह इमेजिनरी रूट हो गया तो यहाँ हम लिखेंगे C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT. ये होगा C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT एज इट इज. फिर यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ IP होगा प्लस माइनस IP. तो जो रिजल्ट होगा यहाँ वो, अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा C3 cos PX प्लस C4 sin PX. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ
यहां अब जो सोल्यूशन होगा, अगेन द सोल्यूशन बी, अब सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अब जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा। नाउ द सोल्यूशन बी yxt is equal to c1 cos px plus c2 sin px, c3 cos cpt plus c4 sin cpt। आपको ऐसा दिख रहा है, c1 cos px plus c2 sin px into c3 sin cos cpt, this is cpt plus c4 sin cpt। यहां से होगा क्या, ये इक्वेशन होगा, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के नेचर को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में, बीटेक फर्स्ट ईयर में, कि साइन और कॉस जो होते हैं वह पीरियोडिक फंक्शन के नेचर को शो करते हैं। द साइन और कॉस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन के नेचर को शो करते हैं। और क्या होता है, जब साइन कॉस पीरियोडिक होगा तो आप जानते हैं कि वाइब्रेशन भी पीरियोडिक होता है। इसलिए ये सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम के नेचर को शो कर रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द केस थर्ड। लेट अस सी केस थर्ड आल्सो। केस थर्ड भी, इफ k becomes 0 शो, आप देख सकते हैं जब k 0 होगा, सो नाउ d2t upon dt square is equal to 0, this becomes t equal to c1 plus c2t, and similarly d2x upon dx square is equal to 0, this becomes x equal to c3 plus c4x। आप ऐसा देख सकते हैं। देन अगेन इन दिस केस द सोल्यूशन बी, इन दिस केस द सोल्यूशन बी, इन दिस केस द सोल्यूशन बी yxt इज इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस c2t इन ब्रैकेट c3 प्लस c4x, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब आप देख सकते हैं एक सोल्यूशन ये, दूसरा सोल्यूशन ये, सातवां वो था, ये आठवां हो जाएगा, ये नौवां होगा, ये नाइन्थ नंबर होगा, ये नाइन्थ नंबर होगा। अब आप यहां देख सकते हैं इन तीनों सोल्यूशन में जब k इक्वल टू 0 होगा, k इक्वल टू नेगेटिव होगा, k इक्वल टू पॉजिटिव होगा, तो तीनों ही केस में हमें किस प्रकार से सोल्यूशन मिलता है और कौन सा प्रॉब्लम के नेचर को शो करता है, तो हम इसमें लिखेंगे ऑफ दीज थ्री सोल्यूशन द ओनली इक्वेशन। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ऑफ दीज थ्री सोल्यूशन, ऑफ दीज थ्री सोल्यूशन which is I think 8, 9, 6, 7, 8, 9. This is 8 solution. 7, 8 and 9 equation 7, 8 shows the nature of the problem, nature of the problem which is periodic in nature, because sine and cos is also periodic function, periodic function।
इस तरह से आप अभी तक आधा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 50% प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इस पे बेस्ड बाउंड्री कंडीशन पे बेस्ड प्रॉब्लम अगले लेक्चर में बताएंगे हम। आपको ये याद होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हम जब कभी भी सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व करना है। हमें पहले के लेके सॉल्व करना है, फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें उस प्रॉब्लम को उस सोल्यूशन को कंसीडर करना है जो प्रॉब्लम के नेचर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। आप यहाँ देख सकते हैं इस पूरे सोल्यूशन के दौरान कास साइन आया हुआ है, जो कि आप इससे भली भांति परिचित है कि साइन और कास जो होते हैं वो पीरियोडिक नेचर के होते हैं, जिसका पीरियड होता है पाई और 2 पाई। So, in the next video, we will see how to solve the given problem by using their boundary condition as their initial condition. Okay, student. So आज बस यहीं तक. Okay, thank you.